तत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम् पार्थिवाद्दारुणो धूमस् तस्मात् अग्नित्रयैर्मया तमसास्तु रजस्तं तस्मात् तत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम् पार्थिवाद्दारुणो धूमस् तस्मात् अग्नित्रयैर्मया तमसास्तु रजस्तस्मात् तत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम् पार्थिवादारुणो धूमस् तस्मात् अग्निस्त्रये मया तामसस्तु रजस्तस्मात् तत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम् पार्थिवादारुणो धूमस् तस्मात् अग्निस्त्रये मया तामसस्तु रजस्तस्मात् तत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम् पार्थिवादारुणो धूमस् तस्मात् अग्निस्त्रये मया तामसस्तु रजस्तस्मात् तत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम् पार्थिवादारुणो धूमस् तस्मात् अग्निस्त्रयमया तमसास्तु रजस्तस्मात् तत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम् पार्थिवाद from earth darunah firewood dhuma smoke tasmat from that agni fire trai Vedic sacrifices Mayaha made of tamsas in the mode of ignorance, two but rajaha the mode of passion, tasmat from that, tattvam the mode of goodness, yat which Brahma the absolute truth, darsanam realization. Translation and purport by His Divine Charana Vedanta. Srila Prabhupada ki firewood is a transformation of earth, but smoke is better than the raw wood, and fire is still better. For by the fire we can derive the benefits of superior knowledge through Vedic sacrifices. Similarly, passion, rajas, is better than ignorance, tamas. But goodness, sattva, is best because by goodness one can come to realize the absolute truth. Purport. As explained above, one can get realized from the conditioned life of material existence by devotional service to the personality of Godhead. It is further comprehended herein that one has to rise to the platform of mode of goodness, sattva, so that one can be eligible for the devotional service of the Lord. But if there are impediments to the progressive path, anyone, even from the platform of tamas, can gradually rise to the sattva platform by the expert direction of spiritual master. Sincere candidates must therefore approach an expert spiritual master for such a progressive march, and bona fide expert spiritual master is competent to direct a disciple from any stage of life, tamas, rajas, or sattva. It is a mistake, therefore, to consider that virtue of any quality of any form of the Supreme Personality of Godhead is equally beneficial. Except Vishnu, all separated forms are manifested under the condition of material energy, and therefore the form of material energy cannot help anyone to rise to the platform of sattva.
which alone can liberate a person from material bondage. The uncivilized stage of life, or the life of the lower animals, is controlled by the mode of tamas. The civilized life of man, with a passion for various type of material benefits, is the stage of rajas. The rajas stage of life gives a slight clue to the realization of truth in the form of fine sentiments in philosophy, art, and culture with norm, moral and ethical principles. But the mode of sattva is still higher stage of material quality, which actually helps one realize the absolute truth. In other words, there is qualitative difference between the different kind of worshipping method as well as represented respective results derived from the predominating deities, namely Brahma, Vishnu, and Hara. We remember few points from previous class. No demigod has capacity to deliver living with. That means कि previous verse it comes that predominant guna is Lord Shiva, Rajoguna is Lord Brahma. Even if we will approach Lord Brahma or Lord Shiva, they will not award us liberation, award us the spiritual world. Other point, they are not in those modes. Yes, Prabhu. Not not be able to practice devotionals. Prabhuji pointed out that statement from this purport only. Their candidates, if they are coach expert, without coming into the goodness, one cannot tell principles in devotional passion and endurance. More point we discussed. I japa are in three modes. Mode of that in that एक लोग बोले जोर से रंजीत को बोले first blood group is positive side also. A very wonderful example. Will choose the first option. तो तुरंत सक्सेस मिल गया. He will be the leader. But we continue real success. So in this particular verse talks about the three modes of material nature. बहुत अच्छा एनालॉजी देते हैं किया गया है यहाँ पे कि जिस तरीके से तो लकड़ी है वो कहाँ से आता है पार्थिव दैट मीन्स इट्स कम्स फ्रॉम अर्थ लकड़ी अर्थ से आता है फायर इज प्रेजेंट इन दैट वुड है ना लकड़ी के अंदर ही आग होता है अगर आग बाहर से होता है तो फिर आग हमको नहीं दे रही होती फायर इज देयर इनसाइड द वुड बट दैट वुड कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड इन द सेक्रीफाइस यहाँ पे एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया गया है देखेंगे तो the fire can derive the benefits of superior knowledge. That means जब हम भगवान के लिए यज्ञ करते हैं
फायर की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि फायर कहाँ है? लकड़ी में है, दैट्स व्हाई वी वुड। देयर आर डिफरेंट लेयर्स। सबसे पहले अर्थ होता है, उसके बाद फिर क्या आता है? वुड आता है और वुड फिर फायर में कन्वर्ट होता है। तो लाइक दैट हियर इट इज सिमिलरली पैशन बेटर देन इग्नोरेंस, गुडनेस इज इवन बेटर देन पैशन। So these three modes of material nature is very important in our life also. Especially Supreme Personality of Godhead has emphasized a lot in our scriptures. भगवत गीता देखें तो भगवान ने बोला, I was a feast, I was हम गीता महात्म्य पे एक बोलते हैं कि भगवत गीता जो है सो सुप्रीम गॉडहेड के द्वारा बोला गया है। दैट्स व्हाई इट्स परफेक्ट, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। भगवत गीता में आप देखेंगे कि भगवान बहुत जगह पे थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में बोलते हैं। एक पॉइंट बोलते हैं त्रैगुणिया विषया वेदानि त्रैगुणिया अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य योगक्षेम निर्योगक्षेम आत्मान। तो वहाँ पे भगवान कहते हैं तो पूरा वेदाज है वो किसके बारे में बातें कर रहा है? तीन गुणों के बारे में बातें कर रहा है, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, टॉलरेंस। लेकिन वो अर्जुन को सजेस्ट करते हैं कि निस्त्रय गुणियो भव अर्जुन। तो अर्जुन यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। आपको इस थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से बाहर निकलना है और डुअलिटी से बाहर निकलना है, देन ओनली अचीव सक्सेस। और कहाँ पे भगवान कहते हैं? यस, जब अर्जुन उनसे पूछते हैं क्या था कि न स्वयं पापम चरति पूत अनिच्छान पिवार्षण या बालादेव नियोजित। बहुत प्रयास करके भी अगर पाप कर लेते हैं, क्या है ये? भगवान कहते हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुना समुद्र। ये क्या है? काम है, दैट लस्ट कम्स फ्रॉम द रजोगुनास। भी लस्ट मतलब आप देखेंगे काम है, हमारे जो छह अनर्थ है काम क्रोध लोभ मोह, comes from gunas only, three modes of material nature। और कहाँ पे आता है? स्वगच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्ति अधो गच्छन्ति तामसा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं लोग सतोगुण में रहते हैं, जैसे पर्टिकुलर श्लोका में भी है कि बाय द गुडनेस वन कैन कम टू रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो जो लोग सतोगुण में होते हैं वो हमेशा ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर बढ़ने का मतलब है कि दे आर uplifting their consciousness and finally they will achieve liberation and come back to Godhead। लेकिन बाकी जो मध्य तिष्ठन की राजसा जो कि रजोगुण में है, वो बीच में रह जाते हैं अर्थ के प्लैनेट्स पे, और जो कि तमोगुण में होते हैं स्लोली स्लोली बॉर्न जाते हैं। और कहाँ पे बोलते हैं? प्रकृते हाँ, प्रकृते कर्माणि सर्वस्य गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मयि। हियर लॉर्ड सेज दैट प्रकृते क्रियमाणि सर्व प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्म। जो प्रकृति के तीन गुण हैं यही सब कुछ करते हैं। तो बेसिकली आगे जब सेकंड कैंटो आएगा तो सेकंड बट ब्रह्मा एक्सप्लेन्स इन वेरी डिटेल हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड हैज क्रिएटेड। और जब इसका क्रिएशन हुआ था तो भगवान ने सबसे पहले जो क्रिएट किया वो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्रिएट। तो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इस संसार में किसी भी चीज को आप ले लीजिए दैट विल कम फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल। चाहे वो पहनने का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे हो तो एनी एक्टिविटी और एनीथिंग whether it's material or subtle, everything will category of three modes of material nature। इससे हट के कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हमको बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट पर्सन, गॉड हैज गिवन अस स्किल्स एंड इंटेलिजेंस, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड इट वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली कि सतोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है। जब इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे तभी, क्योंकि कहावत है ना कि हमको दुश्मन का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए क्या है, तभी हम जब हम लड़ने जाएंगे तो उससे लड़ पाएंगे। नहीं तो पता चला कि उसको निहत्था समझ के बैठे थे और बहुत सारा बंदूक लेकर के आए, तो फिर हम लोग हार जाएँगे। तो इसीलिए हमको काफ़ी अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि रजोगुण और सतोगुण क्या होता है। ये स्पेशली प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में बहुत बार बताते हैं कि अगर आप तमोगुण और रजोगुण में हैं तो आप कभी अपने कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट कर ही नहीं सकते। द ओनली वे फॉर अपलिफ्टिंग आवर कॉन्शियसनेस इज टू कम इनटू द प्लेटफॉर्म ऑफ मोड ऑफ गुडनेस।
और सिर्फ गुडनेस पे भी आने से नहीं होगा, वी हैव टू कीप ऑन अपलिफ्टिंग आवरसेल्फ। तो शुद्ध सत्व में आना पड़ेगा, जैसा कि भगवान कहते हैं ना अर्जुन को, त्रय गुनिया विषया वेदा निस्त्रय गुनिया भवार्जुन। अर्जुन, तुमको इस तीनों गुणों से बाहर निकलना है, तभी तुम सक्सेस को पा सकते हो, दैट इज डुअलिटी से निकल सकते हो। तो हम देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पे भगवान चर्चा करते हैं इस 3 गुणों के बारे में। एक तो भगवद गीता थर्ड थर्ड चैप्टर में भी भगवान कहते हैं गुण के बारे में कि जो पर्सन जो गुण एक्वायर करता है इज फोर्स्ड टू एक्ट इन दैट वे। अगर वो तमोगुण में होता है तो ही इज फोर्स्ड कि इवन इफ वी विल ट्राई टू एक्ट इन द मोड ऑफ गुडनेस, बट वी विल बी फेल्ड टू डू दैट। व्हाई? बिकॉज़ वी हैव एक्वायर्ड दैट मोड ऑफ इग्नोरेंस। भगवद गीता 3.5 में है ये। तो इस तरीके से वहाँ बोलते हैं, फिर बहुत सारी जगह पे हैं और स्पेसिफिकली एक चैप्टर है जिसको भगवान डिनोट करते हैं थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से, जो कि चैप्टर 14 है भगवद गीता का। उसका अगर टाइटल आप देखेंगे तो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो आप देखेंगे कि भगवान खुद ही भागवतम में भी 11th कैंटो 5th चैप्टर है, जो कि थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है। थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड बियॉन्ड इट्स 25th चैप्टर। ये सेक्शन है जहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं। जैसे भागवतम में तो भगवान के बहुत सारे डिवोटीज के बाद होता है, लेकिन पर्टिकुलर दिस सेक्शन इज गिवन बाय सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है टू उद्धवा। तो भगवान ने जब भी बोला है तो उन्होंने काफी एम्फेसिस दिया है थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो हमको काफी अच्छे से समझने की जरूरत है। एक बार भगवत गीता में देखते हैं कि क्या क्या भगवान कहते हैं। हम लोग पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे, कुछ कुछ पोर्शंस देखेंगे कि कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं मोड्स को और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आफ्टर दैट हमको थोड़ा बहुत ये समझ जाएंगे कि नेचर है क्या, देन वी विल ट्राई टू सी कि हाउ वी कैन अपलिफ्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस रजोगुण एंड तमोगुण टू मोड ऑफ गुडनेस, तो प्रैक्टिकल वेज। फिर 25 22 25 वाला पढ़िए। when they are present or long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of the remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regards like happiness and distress, who looks upon a lump of earth, moon, and a gold with an equal eye, who is equal toward the desirable and the undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friend and enemy, who has renounced all material activity. Such a person is said to have transcendent modes of nature. Basically, in this shloka, Lord is saying कि how, which condition we apart from all these three modes of material nature. तो इसमें एक स्पेसिफिक लाइन आता है, हाईलाइट इट, knowing that the modes alone are active. तो this we have to understand it very scrutinizingly। को पता होना चाहिए कि सब कुछ जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, मोड्स की वजह से हो रहा है। लाइक जैसे कि if some person is haunted by some ghost, so what is the way that ghost can be taken out? अगर किसी को पता हो तो किस तरीके से घोस्ट को बाहर निकाला जाता है, एक सिस्टम जिसको जादू टोना तो है, बेसिकली एक थॉट है, एक कॉन्शियसनेस है। घोस्ट हॉन्ट किसलिए करता है? बिकॉज दे हैव सम अनफुलफिल्ड डिजायर्स। तो अगर आप उसके डिजायर को फुलफिल कर देंगे तो वो छोड़ करके चला जाता है। उसका डिजायर जैसे ही फुलफिल होता है तो फिर वो आपको छोड़ करके चला जाता है। तो इस तरीके से को अगर पता हो कि हमको कौन सा भूत पकड़ा है और उसको क्या चाहिए वो दे दें तो निकल जाएगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरी सेकंड एवरी मोमेंट वी आर हॉन्टेड बाय घोस्ट। को पता है हाउ मेनी ऑफ हियर आर हॉन्टेड हियर? So every moment, every second, we are haunted by three modes of material nature. The part of ghost only. तो मुझे काफी समझने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं
इसको कोट करता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि मेनी टाइम्स वी बिहेव इन सम पार्टिकुलर वे कि हम किसी पे गुस्सा हो जाते हैं एंड आफ्टर वेरी मोमेंट वी थिंक कि अरे ये तो मैंने क्या किया, ये मेरा नेचर है ही नहीं, स्टिल आई एक्टेड इन दैट वे। ऐसा लग रहा था कि कोई फोर्सफुली, जैसे अर्जुन पूछता अथक के न प्रयत्न पापम चरति अनिच्छा न भी, मेरी इच्छा नहीं है फिर भी हम कर देते हैं ऐसे। जो एक्टिविटी हम नहीं करना चाहते हैं फिर भी हम कर देते हैं, कोई भी एक्टिविटी, सोना नहीं चाहते हैं दिन में फिर भी सो जाते हैं, या फिर हम किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहते हैं हम फिर भी कर देते हैं, या फिर हम किसी में फॉल्ट नहीं निकालना चाहते हैं फिर भी कर देते हैं। तो ये सारे वो एक्टिविटी हैं जो कि हम करना नहीं चाहते हैं फिर भी हम कर देते हैं। दैट मीन्स समवन इज इम्पेलिंग अस टू डू दैट एक्टिविटी। This is happening because we have acquired, we are haunted by particular ghost, and that is modes of material nature. You have to understand the different categories and different qualities of different modes. जब हम समझेंगे तो फिर अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, हाँ हम पार्टिकुलर इस मोड में हैं, इसलिए आई एम एक्टिंग लाइक दिस, और इस मोड से बाहर निकलने की क्या एक्टिविटी वो हमको चीज़ें करनी है। तो इस भागवतम का जो सेक्शन है इसमें भगवान काफ़ी डिस्क्रिप्शन के साथ बताते हैं कि मोड ऑफ गुडनेस क्या है, मोड ऑफ पैशन क्या है और मोड ऑफ इग्नोरेंस क्या है। पढ़िए कोई। Mind and sense control, tolerance, discrimination, sticking to one's prescribed duty, mercy, careful study of the past and future, satisfaction in generosity, appreciation of faith in the spiritual master, being embarrassed at improper action, charity, humbleness, and satisfaction within oneself are qualities of the mode of good. वट एवर देयर अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये सारे क्या है, क्वालिटीज ऑफ गुडनेस। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि साधना सुखाना एक लेक्चर है, बैड डॉग एंड गुड डॉग, लोगों ने सुना है, तो इसकी ड्यूटीज नहीं सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छा लेक्चर है। और बेसिकली को इस तरीके से एम्फेसिस करते हैं महाराज कि हमको हमेशा गुड डॉग को फीड करना चाहिए और बैड डॉग को स्टार्व करना चाहिए। So accordingly, we have to focus on the qualities which comes under the category of goodness, और जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पैशन और इग्नोरेंस में क्या क्या आता है, उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कि कुछ दिन पहले राम टेम्पुर ने जो क्लास दिया, क्या था, स्किलफुली मैनेजिंग आवर फोकस। तो जब हम अपने फोकस को मैनेज करते हैं, जब हम गुडनेस पे फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी विल प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस। और अगर हम पैशन और इग्नोरेंस के क्वालिटीज पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैशन और इग्नोरेंस में आ जाएंगे। तो माइंड एंड सेंस कंट्रोल, we put effort in controlling our senses, showing tolerance, discrimination, sticking to prescribed duty, and truthfulness, mercy, study of the future, satisfaction in any condition, generosity. And we will focus on all these conditions कि हमको ये सारे qualities अपने अंदर डाल लाने हैं, then automatically this will come। ठीक है, आगे पढ़िए। Material desires, Material desire, great endeavor, audacity, dissatisfaction even in gain, false pride, praying for material advancement, considering oneself different and better than others, sense gratification, rash eagerness to fight, fondness for hearing oneself praised, tendency to ridicule others, advertising one's own prowess and justifying one's action by strength are qualities of the mode of passion. तो हम देखेंगे, चलिए मेरे लिए तो यही प्रोमिनेंट है काफ़ी। फैशन में जो सारी चीज़ें हैं वही हमको अच्छा लगता है और हमको वो चाहिए भी होता है। बट दिस मोड ऑफ पैशन इज ऑल्सो डिग्रेडिंग। पहले आई वॉज हैविंग दिस कॉन्सेप्शन, चलो पैशन में रहते हैं तो गुड, इग्नोरेंस है तो अच्छा है, लेकिन अब इग्नोरेंस से अच्छा है तो इसका क्या ही मतलब बनता है, ये भी तो हमको डिग्रेड ही कर रहा है। इज लाइक अभी पिछले क्लास में कंटेंट को बता रहे थे ना कि अगर आप रिफाइंड ऑयल खाते हैं, अगर आप शुगर खाते हैं, तो दीज आर स्लो पॉइजन्स। एक बार में पॉइजन लेके मर जाएं या फिर ये स्लो पॉइजन ले जिससे हम अपने आप को डिग्रेड कर लें। तो दिस मोड ऑफ पैशन इज लाइक स्लो पॉइजन ओनली। तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मोड्स की बातें करें तो रहना चाहिए किसमें, गुडनेस में। हम रहना चाहते हैं किसमें, पैशन में। फिर हम रहते हैं किसमें, इग्नोरेंस में। तो इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम रहना चाहते हैं पैशन में, इसलिए पैशन वाली चीज़ें हमको काफ़ी पसंद आती है।
लेकिन हमको रहना चाहिए गुडनेस में, जो कि हम पढ़ते हैं हाँ, बढ़िया-बढ़िया चीज़ है, अच्छा है। बट वी डोंट गिव मच अटेंशन टू दैट। जैसे कि रेनोंसिएशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन से बचना, माइंड कंट्रोल, सारी चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं डालते हैं। तो डालना चाहिए, लेकिन फ़ोकस डालते हैं पैशन वाली चीज़ों पे। इग्नोरेंस में देखते हैं क्या-क्या है। Intolerant anger, stinginess, speaking without scriptural authority, violent hatred, living as a parasite, hypocrisy, chronic fatigue, quarrel, lamentation, illusion, unhappiness, depression, sleeping too much, false expectations, fear, and laziness constitute the major qualities of the mode of ignorance. Now, please hear about the तो बेसिकली भगवान ये बता रहे हैं, तो डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या-क्या पैशन और इग्नोरेंस में आता है। व्हेन आई वाज़ रीडिंग भगवद गीता, 3 चैप्टर इज़ डिवाइन एंड डेमोनिक, 3 चैप्टर। तो स्टार्टिंग के 4-5 वर्सेस है जिसमें भगवान डिवाइन पे फोकस करते हैं। आफ्टर होल चैप्टर इज़ फोकस्ड ऑन डेमोनिक नेचर। व्हाइल आई वाज़ रीडिंग, तो जब डिवाइन पढ़ा तो लगा कि हाँ, ये तो होना चाहिए। कुछ-कुछ चीज़ें हैं भी, लेकिन जब डेमोनिक पे पहुँचते हैं तो दिखता है अरे सब कुछ मेरे में ही है। तो वैसे ही यहाँ पे जो भी इग्नोरेंस और पैशन वाली चीज़ें हैं, दैट कम्स इन डेमोनिक क्वालिटीज़ ओनली। तो ये सारी चीज़ें हमें भर-भर के हैं, गुडनेस वाली चीज़ें नहीं। वी आर एस्पायरिंग ओनली, वी आर नॉट डूइंग मेकिंग सिग्निफिकेंट एफर्ट टू अचीव these qualities। एक सेइंग है इंग्लिश में, देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रिटेंडिंग एंड डूइंग। We are just pretending to be in mode of goodness, but as far as the activity is concerned, we are focusing passion and ignorance only. So we have to put a lot of effort to come in platform of goodness। ये कैसे आ सकते हैं? तो बेसिकली नेक्स्ट श्लोका में शायद भगवान कहते हैं, पढ़िए तो सही। The combination of all three modes is present in the mentality of I and mind. The ordinary transaction of this world, which are carried out through the agency of the mind, the objects of perception, the senses, and the vital airs of the are also based on the combination. Basically the first line, the combination of all three modes is present in the mentality of I and mine। के रिगार्डिंग ना एक बहुत अच्छा पास टाइम है। हैव बीन इन उडुपी कृष्णा, दर्शन उडुपी कृष्ण, सांग प्रभु इज ओनली देयर। में दर्शन लेने का वो अलग एक्सपीरियंस है। बाय द मर्सी ऑफ सम फॉर्चूनेट होस्ट I happened to take darshan of very beautiful. Till now, the charming did is Udupi Krishna. तो का पास टाइम तो हर किसी को पता होगा कि हाउ ही इज, को पता है, कितने लोगों को पता है पास। तो बेसिकली दिस ईटी heard from years was worshipped by रुक्मिणी। रुक्मिणी पर भगवान कृष्ण आपके बाल लीला को मैंने, I longed to see your, I want to take your darshan in that बाल लीला। भगवान अपने हाथ से वो विग्रह निकाल करके बाल वाला लीला, वो नॉटी कृष्णा, कृष्णा है, उनका विग्रह है, के हाथ में चर्निंग रॉड रहता है, तो दूसरे साइड रस्सी होती है। तो उसके बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं। फिर एक बार क्या होता है, माधवाचार्य लोग आते हैं ना, ब्रह्म माधव गौरीय संप्रदाय, माधव वर्ड है दैट इज नोटेड फॉर माधवाचार्य। माधवाचार्य वो उसी जगह पे रहते थे, पास में ही उनका घर है कुछ किलोमीटर्स पे। आप गए थे क्या उनके घर पे? भी हम लोग गए हैं। कभी सोने में बदल जाता है। देयर आर मेनी पास्ट टाइम्स, इट सम एनुअल वन। तो वो क्या होते हैं कि एक बार समुद्र के किनारे है वो, नाव है वो जा रही होती है समुद्र में, जहाज होता है बड़ा, और जहाज डूबने वाला होता है। माधवाचार्य दूर से देखते में, अरे तूफान
ना कोपिन निकालते हैं और एक बार ऐसा हिला देते हैं कि हिलाने मात्र से समुद्र शांत हो जाता है। बिकॉज ही इज इनकारनेशन वायुदेव एंड भीमा, कंबाइंड इनकारनेशन ऑफ वायुदेव के अपने आप शांत हो जाता है। और जब वायु शांत होता है समुद्र तो नाविक उनके पास आते हैं और ही पेड हिज ओबेसेंसेस कि आपने मेरा जीवन बचा लिया, बताइए आपको क्या चाहिए। मैं एक व्यापारी हूँ, हमारे जहाज पे बहुत सारी चीजें व्यापार करने जा रहा हूँ, तो इसमें जो चाहिए आप मुझे मैं दे दूँ। तो देखते हैं कि वो गुजरात से आ रहे थे, आज पे दो बड़े बड़े पत्थर थे गोपी चंदन के, द्वारका में गोपी तालाब है, आते हैं तालाब, सब गए होंगे। I also been there, सारे आप सब। गोपी तालाब से वो दो पत्थर, और वो इसलिए रखे थे अपने नाव पे, जहाज पे, ताकि क्योंकि पानी में जब अनबैलेंस होता है ना पत्थर की लहर, तो किसी साइड, तो बेसिकली जहाज को बैलेंस करने के लिए रखा था पत्थर को। बोले कि ये दोनों पत्थर आप मुझे दे, दोनों पत्थर में एक में भगवान बलराम होते हैं, भगवान कृष्ण, यूपी कृष्ण, दैट प्लेस। बलराम जी को पत्थर के किनारे, भगवान का ना एक पार्टिकुलर वो है, फेमस है, जैसे एक भगवान जो जो विग्रह है किसी पार्टिकुलर लीला के लिए, तो जो माधवाचार्य हैं उन्होंने एस्टेब्लिश किया, ज्ञान प्रतिष्ठा किया, उस समय भगवान का जो फेस था वो पूरब की तरफ था। लेकिन अभी आप जाएंगे दर्शन लेने, अभी भी मंदिर का जो गेट है वो पूरब की तरफ है, भगवान पीछे टर्न हुए हैं, पश्चिम की तरफ, और पीछे में एक छोटा सा छेद है, 9 होल्स हैं, कहा जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि भगवान पीछे मुड़ गए, तो हुआ होगा, पता है क्या हुआ कि भगवान, बेसिकली कर्नाटका में बच्चा था, काफी छोटा था, शूद्र परिवार में जन्म लिया, तो काफी हृदय से सरल स्वभाव का था, इतना सरल था कि उसको टैलेंट नहीं था, एक जड़ भरत नहीं पता है, वाले निकाल दिए, लाइक दैट। ये जो बच्चा था ये भी पता नहीं था, बहुत ज्यादा सरल स्वभाव का था, तो स्कूल में एडमिशन नहीं होता, तो शूद्र परिवार से था, के ब्राह्मणों के गुरुकुल में, माता पिता भी देखे कि अरे इसको आता जाता है नहीं, घर से निकाल दिए। आश्रय वैष्णव महाराज जी का इंस्ट्रक्शन, यू यू बिहेव लाइक अ मैडमैन, योर फादर एंड मदर विल सेल्फ आस्क यू टू लीव द होम। अगर आप बहुत ज्यादा स्किल टैलेंट दिखा, वो पकड़ के रखते हैं, देखिए कुछ है ही नहीं इसके पास तो क्या ही करना है, निकाल दो इसको। इसी तरीके से इनको भी निकाल दिया, ये बेचारे निकल के इधर भटक रहे थे, बहुत डिजायर था जानने का कि भगवान है कौन, कैसे पता चला। वंस ही हैपेंड टू बी विथ एक बहुत बड़े सन्यासी थे, उनके पास पहुंचे, सन्यासी ने देखा कि इस बच्चे का हृदय काफी सरल है, तो इसको शिक्षा देनी चाहिए, जिज्ञासु भी है, भगवान के बारे में जानना भी चाहते हैं। वो जाते हैं और उसको क्या चाहिए तुम्हें, पढ़ाई करना है, ठीक है, उसको एक गुरुकुल में, वो बहुत बड़े सन्यासी फेमस थे, तो उनके रिकमेंडेशन पे, रिकमेंडेशन मिलने, बोल दीजिए ना हम लोग जा रहे हैं, वैल्यू लाइक दैट, एक गुरुकुल में एडमिशन करवा, गुरुकुल में चले गए, लेकिन वहाँ पे शायद पंडित, तो इसको बोला कि आप क्या करिए, साइड में खड़े रहिए कोने में, और जब भी क्लास करना है तो कोने में खड़े होकर के करिए, इस तरीके से
4 साल का डिग्री निकाल दिया। उसके बाद गुरुजी आए जिन्होंने बताया था वो बोले, परीक्षा लेने आया हूँ। तो इस परीक्षा में क्या होगा? आई विल आस्क ओनली वन क्वेश्चन और जो आंसर देगा उसको मैं समझूंगा कि इसने 4 साल की डिग्री का जो भी अच्छे से सीखा है। तो इनका सवाल था कि तो सारे जो टॉपर था उसको बुलाया, उसने एकदम बड़ा लेक्चर किया, यम नियम प्राणायाम ध्यान समाधि। गुरुजी बोले नहीं नहीं इससे नहीं चलेगा। फिर दूसरे को बुलाया गया, उन्होंने बोला कि हिमालय में जाकर के बर्फ के अंदर बिना कपड़े के 1 साल रहेंगे तो जाएंगे, और ये भी नहीं होगा। जितना भी ज्ञान योगा अष्टांग योगा सब बता दिए। जो उस गुरु थे उनसे भी पूछा गया, वो भी नहीं बता पाए। मतलब बेसिकली वो जो आंसर वो चाहते थे वो नहीं बता पाए। तो फिर उन्होंने उस बच्चे को बुलाया कि उसको बुलाओ। उसका नाम कनक था बेसिकली, तो कनक दास को बुलाओ। तो वो बोला कि देखिए हम तो कोने में बैठ के सुनते थे, तो बहुत कुछ सुनाई देता नहीं था नहीं उस समय। लेकिन जो सुने हैं, आपका सवाल छोटा है तो हम एक लाइन में आंसर देंगे। कौन जा सकता है? तो वो कहते हैं मैं जाएगा तो मैं जाऊँगा। इन लोगों को समझ में आया। बेसिकली वो कहते हैं जैसे कि यहाँ पे भगवान ने बोला है ना, ये लाइन पे ही इसके कमेंट्री में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद लिखते हैं। तो पढ़िए कंट्रोल ऑफ माइंड। Control of the mind, control of the senses, tolerance, and so forth are manifestations of the unmixed mode of goodness. Desire, endeavor, false pride, so on are manifestations of the unmixed passion. Anger, greed, and bewilderment are among the functions of the unmixed mode of ignorance. The admixture of the three modes define the concept of I and my behavior in accordance with this mentality by body, mind, and words. Adherence to the principle of religiosity, economic development, and sense gratification, and the fixed pursuit of one's occupational duty. बेसिकली दिस आई एंड माई कॉन्सेप्ट वेरी प्रोमिनेंट इन ourselves. When we will leave this concept of I and mine, मैं और मेरा, तब जा कर के हम अपने अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो जो कनक दास थे उन्होंने यही बोला, मैं जाएगा, मैं मतलब जो आई एंड माइन का जो कॉन्सेप्ट है, मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। जैसे ही मैं अपना कॉन्सेप्शन का मेरा और मैं वाला, तो मैं भगवत धाम जा सकता हूँ। दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट टू गेट इनटू द अबोर्ड ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड। जो थ्री मोड ऑफ मटेरियल नेचर है, इससे भी निकलने का एकमात्र तरीका है, तो आई एंड माइंड के कॉन्सेप्शन को छोड़ना होगा। आई एंड माइंड के कॉन्सेप्ट को छोड़ेंगे तभी हम जा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम इसलिए मैंने सुनाया था वैसे। तो यहाँ से कनक दास वहाँ से ग्रेजुएट हो चुके थे, हवाई में मिल गया तो वहाँ से निकल गए। फिर उनका बहुत डिज़ायर था कि वो भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो पता चलता है कि उडुपी में भगवान का विग्रह है और साक्षात वो खड़े हैं। जब वो जाते हैं वहाँ पे भगवान का दर्शन करते हैं, वहाँ ब्राह्मण लोग स्पेशली उडुपी में जाएंगे तो 8 मठ है वहाँ पे, माधवाचार्य ने एस्टेब्लिश किया। काफ़ी एलिजिबल हैं, काफ़ी क्वालिफाइड हैं वहाँ पे, लेकिन वो लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को बहुत प्रोमिनेंटली प्रैक्टिस करते हैं। जब कि आपका वो देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी नहीं चेक करना चाहिए, हमेशा चीज़ों को इधर से उधर बदलते रहती है। लेकिन वो लोग काफ़ी अच्छे से इनके पंचांग में, पंचांग बोले, जन्म कुंडली में संन्यास योग होता है, उसी मठ का हेड बनाते हैं। दे आर ऑल्सो फिलोसफिकली करेक्ट, काफ़ी अच्छे से। एक 2-2 साल के लिए हर मठ का टर्न आता है मंदिर को चला, वहाँ जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी प्रोमिनेंटली प्रैक्टिस करते हैं, बाई बर्थ वो ब्राह्मण होना चाहिए। तो ये तो बाई बर्थ ब्राह्मण थे नहीं, शूद्र थे। गेट पे पहुँचने के साथ ही इनको एंट्री नहीं दिया गया। जब एंट्री मिला नहीं तो बेचारे सोचते क्या करें, फिर के पीछे चले गए। बस प्रेइंग टू गॉडहेड, भगवान देखिए आप इस कंडीशन दर्शन तक नहीं ले सकता हूँ। उसके बाद प्रे करते करते फिर भूख लगी तो थोड़ी करने गए, चोरी करी करके राइस वाइस
बनाया, फिर सोचे कि अब भगवान को खिलाएँ कैसे? कि बिना आपको खिलाए हुए मैं तो खा नहीं सकता हूँ। तो प्रे करने लग गए। जब प्रे कर रहे थे तो देखिए दीवाल का टूटता आवाज़ आता है और भगवान टर्न होकर के दीवाल तोड़ कर हाथ बढ़ा करके एक्सेप्ट कर लेते हैं उस खिचड़ी को। इसलिए अभी भी वहाँ पे वो स्पेशल खिचड़ी बनाया जाता है भगवान के लिए। कनकदास ने ऑफ़र किया था और अभी भी जो भगवान का दर्शन है वो पीछे से ही होता है। इधर से कनकदास दर्शन लिया करते थे, दीवाल तोड़ दी, इधर से ही मैं जब दर्शन लेने गया था तो इतना लेकिन लाइन लगी होती है। कोरोना का टाइम था। कोरोना का टाइम था तो भीड़ कम था। एक बार गया फिर से चला। 4 बार हो गया तो जो गार्ड था मुझे पकड़ के एकदम मंदिर के बाहर छोड़ के आया। तो इस तरीके से वो आई एंड माइन का होगा टेंडर करना। हम प्रैक्टिकल टिप्स आई कुछ टू डिस्कस कैसे कर सकते हैं। कभी हिजोलिन भक्त उनसे सवाल पूछते हैं कि महाराज हम बहुत बार सुनते हैं प्रभुपाद से से सुनते आचार्य से सुनते कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है। बेसिकली दिस बिकॉज ऑफ दिस मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड बॉडी इतना सुनते हैं फिर भी इस शारीरिक चेतना से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आई आर ऑल्सो क्यूरियस कि महाराज क्या आंसर देंगे इसको। ये एक जेन्युइन सवाल है जो कि हम भी पढ़ते हैं लेकिन हम निकल नहीं पाते हैं। महाराज ने बताया कि जो जब अच्छे से हम जप करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने को दर्पण मार्जन हमारे दर्पण हृदय रूपी जो दर्पण है इसके ऊपर अनर्थ का लेयर जमा है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर इन दिस बॉडीली कॉन्शियसनेस। ये मर्जन जो है जो दर्पण है उसका मार्जन करना होगा हृदय का। और जब हम भगवान के नाम का जप अच्छे से करेंगे तो हमारा हृदय साफ होगा। जब हम हृदय को साफ करेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन भी दे रहे थे कि पहले मुझे भी बहुत सारा थॉट आता था लेकिन जब करता हूँ तो हम सिर्फ भगवान अब कोई थॉट नहीं आता। लाइक दैट when we will chant also sincerely and nicely then we will come out of this bodily consciousness mode तो ये सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तरीका है वो सिंसियरली भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तब हम इस थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो बहुत सारा जैसे कि सर्वेंट ऑफ सर्वेंट में जो लिनेस वो कौन से ब्रह्म ज्वाइन कर लिए तो फिर भी काम वासना बहुत परेशान करती थी। वो अलग अलग डिवोटीज को कंसल्ट करते थे कि कैसे कंट्रोल किया जाए। तो कोई लोग कहता था कि आप गर्म पानी ठंडे पानी से, कोई लोग कहता था कि आप गाजर मत खाइए, कोई लोग कहता था कि आप टैमरिंड मत खाइए। तो इस तरीके से अलग-अलग लोग बहुत सारा सुझाव दे रहे थे कि आप मत करिए ये सब तो आपका काम वासना कंट्रोल में रहेगा। बट वहाँ पे वो लिखते हैं बट आई वाज़ नोइंग दैट अनलेस एंड अनटिल आई विल सर्व गॉडहेड आई विल नॉट गेट आउट ऑफ दिस कष्ट। जब तक हम भगवान को सरेंडर नहीं करते, भगवान को सरेंडर करने का तरीका है भगवान के नाम का जप। भगवान के जैसे पिछले क्लास में भी काफ़ी सिंसियरली करना चाहिए। मतलब है मेरे अंडरस्टैंडिंग जब हम प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि जब हम अच्छे से बोलते हैं और अच्छे से सुनते हैं, क्लियर प्रोनाउंसिएशन एंड क्लियर हियरिंग ऑडल रिसेप्शन टू द होली लॉर्ड दैट इज गुड चैंटिंग। अच्छे से बोल करके यही अचीव करना है तो हमारा जब अच्छे से होगा। राधे श्याम प्रभु बेसिकली बताते हैं कि जो हमको अगर थ्री मोड्स ऑफ मेडिटेशन बाहर निकलना तरफ इंस्ट्रक्शन में कैसे मिलता है? तो स्टार्टिंग के 3 वर्सेस को अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि अगर आप सही में सिंसियर हैं तो आप क्या करिए टेबल बनाइए। टेबल में क्या एक साइड कॉलम में 18 पॉइंट्स लिखिए, 18 पॉइंट का जो 3 वर्ष है पाँचों वेगम मन वेगम उदरोपस्थ सर्वम अपिमम में 6 चीजें हैं जो कि हमको नहीं करनी चाहिए। कौन-कौन सी है? सबसे पहला वाचो वेगम। वाचो वेगम का क्या मतलब होता है? स्पीच को अपने बोलने जितना बोलते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए।
फिर भगवान के बारे में बोलना चाहिए, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। तो वाचो वेगम मन, बेसिकली 6 चीजें हैं। The urge to speak, the mind's demand, the action of anger, the urge of tongue, belly and genital। ये 6 चीजें लिख लेनी चाहिए। उसके बाद फिर सेकंड श्लोका में आता है, eating more than necessary or collecting more than required, over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain, unnecessary, thinking unnecessarily about mundane things, practicing prescriptive rule regulation only for the sake of following them and not for the sake of rejecting the rules and regulations of the scripture, working independently or whimsically. Fifth, associating worldly minded person who are not interested, being greedy for the mundane achievements। तो पहले श्लोक में 6 था और इसमें भी 6 चीजें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। तो 6 6 12 हो गया। उसके बाद इसमें आता है जो हमको करनी चाहिए। तो पहला है बीइंग एंथुसियास्टिक, दूसरा है एंडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस, बीइंग पैशंस, acting according to the regulative principles such as Shravanam, abandoning the association of non-devotees, following the previous acharyas। तो ये 6 चीजें हमको करनी चाहिए। है। तो आप एक कॉलम में पूरा 8 लिखिए, ऊपर में डेट्स लिखिए, 7 डेज। आप प्रैक्टिस टिक लगाइए कि आज मैंने कौन बचो वे, उसमें टिक कर देना है, फॉलो नहीं कर रूल। अर्थ है फिट्स है, इसमें मुझे वर्क करने की जरूरत है। और फिर करके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम 18 एक लाइन में लेकर के आएंगे और उसको प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, अब हम मोड ऑफ प्रैक्टिकल। हरे कृष्णा हरे हरे राम। हमारा 3 वर्ष मटेरियल से हम बाहर जा सकते हैं। भागवत महापुराण की जगत गुरु श्री भगवान